Hello my dear students, I am back again with my second video for the students of class 12 on the topic Partnership Fundamentals Part 2. Part 2 simply means we have seen in our previous videos, that was Partnership Fundamentals Part 1, in which we have discussed the meaning and features of partnership, the meaning and the contents of partnership deed, what are the rules applicable in the absence of partnership deed, and we have also learned how to prepare profit and loss appropriation account and how to prepare partners capital account by using fixed capital method and fluctuating method. Now in this video we will study that how interest on drawings is calculated. So my dear students, moving ahead, we will study interest on drawings today. So students, for calculating interest on drawings, there are two cases. Basically there are two main cases. The first case is an equal amount is withdrawn on different dates, and the second is equal amount is withdrawn on uniform on equal intervals. So first of all, let's begin with case 1, that is an equal amount is withdrawn on different dates. Unequal amount means the amount are different, like a partner withdrew rupees 500 in one month, 1000 in the next month, 1200 in another month, 1500 in another month. So the amounts are different from each another, and it is drawn on different dates. Different date means sometimes he withdrew at the beginning of the month, sometimes he withdrew at the end of the month, or sometimes he withdraws at the मिडिल ऑफ द मंथ. मतलब डेट्स भी अनइक्वल हैं और अमाउंट भी अनइक्वल हैं. अगर कोई ऐसा केस है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, द सिंपल मेथड एंड द प्रोडक्ट मेथड. फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय यूजिंग सिंपल मेथड वी यूज़ फार्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12. And in the same case, if we are applying the product method, then the formula for product method is total of product into rate upon 100 into 1 upon 12. Moving on to the second case, equal amount is withdrawn on equal intervals. That amount is same. He is withdrawing rupees 1000 every month. He is withdrawing rupees 2000 every month. हर महीना 1000 रुपये की ही ड्राइंग हो रही. So the amounts are equal. एंड इक्वल इंटरवल्स का मतलब हो गया कि एक ही जैसी डेट्स को ड्राइंग्स हो रही हैं. लाइक ही इज़ विड्रॉइंग एवरी मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, लाइक ऑन जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, या एट द लास्ट ऑफ द मंथ ऑन जनवरी 31st, ऑन फरवरी 28, ऑन मार्च 31st, ऑन अप्रैल 30th. एक ही जैसी डेट्स पे एक जैसी ही अमाउंट अगर विड्रॉ हो रही है तो केस नंबर सेकंड बनता है, जिसको हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द मेथड एवरेज पीरियड मेथड और फैक्टर मेथड. और फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू फैक्टर पीरियड, और फैक्टर पीरियड कह लीजिए, एवरेज पीरियड कह लीजिए, अपॉन 12. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द केस 1, means calculation of interest on drawing by using simple method or by using product method. So students, moving ahead, you can see that a numerical is in front of you. If you'll go through the question, it is written that calculate interest on drawings for Mr. A at the rate of 10% per annum for the year ending on 31st of March 2019. और आपको डेट्स दे रखी हैं. देखिए उसने फर्स्ट ड्राइंग की है अप्रैल 1 को 500 की, देन मई 1 को 1000 की, देन जून 1 को 1500 की, देन 30th जून को 2000 की, देन 31st ऑफ जुलाई को 1000 की, 1st ऑफ दिसंबर को 500 की, 31st ऑफ जनवरी को 750 की, एंड 31st ऑफ मार्च को 1000 की. अब अगर आप इस पर ध्यान से देखिए, सो द डेट्स आर अनइक्वल. कभी ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो रही है, कभी ड्राइंग एट द एंड ऑफ द मंथ हो रही है. सेकेंडली, अगर आप अमाउंट का कॉलम देखें, सो द अमाउंट्स आर ऑल्सो अनइक्वल.
500, 1000, 1500, 2000, 1500, 750, 1000, the amounts are also unequal. So ये बनता है हमारा केस 1 when the amount and the date of drawings are unequal. इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम सिंपल मेथड को यूज़ कर सकते हैं, otherwise we can use product method also. So first of all we will solve this numerical by using simple method, and the calculation of interest on drawing by using simple method, the formula is amount of drawing into rate upon 100 into months upon 12. अब हम आते हैं सोल्यूशन पे. अगर आप सोल्यूशन की टेबल देखें तो पहले दो कॉलम सेम एज इट इज़ वही हैं जो आपके क्वेश्चन में लिखे हुए थे, द डेट एंड द अमाउंट. That is April 1, May 1, June 1, 30th June, 31st of July, 1st of December, 31st of January and 31st of March. And the amount is 500, 1000, 1500, 2000, 1500, 750 and 1000. Now the next column which is to be prepared is the column for months. Months का मतलब होगा बेटा यहाँ पे कि जो ड्राइंग्स की गई हैं अलग अलग मंथ्स पे, अलग अलग डेट पे, इस पर्टिकुलर अमाउंट पे टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. अब ये मंथ्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस मंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है दैट द ईयर इज़ एंडिंग ऑन 31st of March 2019. मतलब हम अपना ईयर एंड कर रहे हैं 31st of March 2019 को. सो जो ड्राइंग की डेट है उस डेट से 31st of March 2009 तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे. जैसे कि द फर्स्ट ड्राइंग इज़ बीइंग मेड ऑन April 1, 2018 फॉर ₹500. 1 अप्रैल 2018 को 500 रुपीज़ विदड्रॉ किए गए. अब 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31st of March 2019 तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं? मंथ्स होते हैं टोटल 12. यानी कि जो 1 अप्रैल 2018 को 500 रुपीज़ विदड्रॉ किए गए हैं उस पर टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 12 मंथ्स का. नेक्स्ट डेट सेम वैसी है. द डेट इज़ 1st of May 2018, अमाउंट विदड्रॉन इज़ 1000. अब 1st of May से लेकर के 31st of March 2019 तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं? मंथ्स होते हैं 11. यानी कि जो आपने ड्राइंग 1st of May 2018 को की है ₹1000 की, उस पर टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे? 11 मंथ्स का. थर्ड डेट आइए, दैट इज़ ऑन 1st of June 2018. सो 1st of June 2018 से लेकर के 31st of March 2019 तक टोटल कितने मंथ्स हो जाएंगे? मंथ्स हो जाएंगे 10. यानी कि जो 1500 की ड्राइंग्स की गई है उस पर टोटल इंटरेस्ट चार्ज होगा 10 मंथ्स का. सो इस तरीके से आप मंथ्स कैलकुलेट करेंगे. जिस पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग की गई है उस डेट से ईयर के एंडिंग डेट तक टोटल कितने मंथ्स हैं उतने मंथ्स का इंटरेस्ट आप उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे चार्ज करते जाएंगे. अब जैसे कि आप सोल्यूशन में देख सकते हैं 500 पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर 11 मंथ्स का, फिर 10 मंथ्स का, फिर 9, 8, 4, 2 एंड द लास्ट वन इज़ 0. 0 इसलिए है क्योंकि द लास्ट ड्राइंग इज़ मेड ऑन 31st of March 2019, दैट इज़ द लास्ट डेट ऑफ द ईयर. तो उसके आगे तो कोई मंथ है ही नहीं, हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है. यानी उस पर्टिकुलर अमाउंट पे टोटल 0 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज एक तरह से नहीं होगा. इस तरह से आपने मंथ्स कैलकुलेट कर लिए. अब फॉर्मूले में आपको एक एक वैल्यू रखते जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे कि देखिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12. फर्स्ट इज 500, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ 500 इंटू रेट अपॉन 100. रेट इज़ 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12. इस पर्टिकुलर ड्राइंग पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना है? 12 मंथ्स का. तो 12 अपॉन 12. उसी तरीके से सेकेंड 1000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 11 अपॉन 12. फिर 1500 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 12. फिर 2000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12. फिर 1000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12. देन 500 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 12. देन 750 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 12. एंड 1000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 0 अपॉन 12. दैट विल बी 0. So this is the procedure of calculating interest on drawings when the amount
and the dates are unequal by using simple method। आपको हर पर्टिकुलर अमाउंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब लाइक वाइज आप देखते जाइए, फर्स्ट अमाउंट पे 50 रुपीज़, देन 91.6, देन 125, देन 150, देन 66.6, देन 16.6, 12.5 एंड 0। और आप इन सब का अगर टोटल कर देंगे मीन्स 50 प्लस 91.6 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 66.6 प्लस 16.6 प्लस 12.5, it will be is equal to rupees 512.3। So the total interest on drawings charged during the year will be rupees 512.3 and this was all about for simple method। ये है आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कब हम लोग अप्लाई करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे व्हेन द डेट्स एंड द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर अनइक्वल। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल कितने मंथ्स का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर अमाउंट पर चार्ज होना है। मंथ्स कैसे कैलकुलेट होगा? जिस पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग की गई है उस डेट से द लास्ट डेट ऑफ दैट ईयर ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड देन put the values in the formula, that is amount of drawing into rate upon 100 into months upon 12 and you will get interest on drawings by using simple method. This is one of the method we use when the amount and the date of drawings are unequal. Now we can solve this question by using product method also because we were having two methods। हमारे पास दो methods थे केस वन को सॉल्व करने को। केस वन कौन सा था? केस वन था व्हेन द अमाउंट एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स आर अनइक्वल। सिंपल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ द सेम क्वेश्चन वी विल सॉल्व बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। सो मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट मेथड, सी द क्वेश्चन इज सेम। Calculate interest on drawing for Mr. A at the rate of 10% per annum for the year ending on 31st of March 2019, April 1, May 1, June 1, 30th June, 31st of July, 1st of December, 31st of January, 31st of March, and the amount is 500, 1000, 1500, 2000, 1500, 750 and 1000. Now we will solve this question by using product method। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला दैट इज़ टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। अगर आप सॉल्यूशन में देखें अगेन द फर्स्ट टू कॉलम्स आर द सेम जो क्वेश्चन में लिखे हैं। तो पहला कॉलम आपका डेट का है, दूसरा कॉलम आपका अमाउंट का है, थर्ड कॉलम हम फिर से मंथ्स का ही बनाएंगे। मंथ ठीक वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आपने सिंपल मेथड में कैलकुलेट किया था। कैसे? द डेट ऑफ द ड्राइंग एंड द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन दोनों के बीच में टोटल कितने मंथ्स हैं उतने पर्टिकुलर मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। लाइक अगेन फर्स्ट अप्रैल पे 500 विड्रॉ हुआ है, उसमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। देन फर्स्ट ऑफ में 1000 इज़ बिंग विड्रॉन, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। देन जून 1 को 1500 इज़ बिंग विड्रॉन, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। देन 9, 8, 4, 2 एंड 0। नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्ट विल बी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स। जो आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है और जो मंथ्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 500 इंटू 12 6000, 1000 इंटू 11 11000, 1500 इंटू 10 इज़ 15000, 2000 into 9 is 18,000, 1000 into 8 is 8,000, 500 into 4 is 2,000, 750 into 2 is 1500 and 1000 into 0 is 0। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर दीजिए। मीन्स 6000 प्लस 11000 प्लस 15000 प्लस 18000 प्लस 8000 प्लस 2000 प्लस 1500 इज इक्वल टू 61500। पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। टोटल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 61500 इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12 एंड द आंसर विल बी 512.5। So basically these were the two methods which are used for calculating interest on drawings when the amount and the date of drawings are unequal. It is up to you which method do you use while calculating interest on drawing. अगर question में specifically mentioned है that you have to use simple method or you have to use the product method, then you will go according to the question. But if it is not mentioned in the question, so it's up to you which method you are using, while you are using simple method or you are using the product method। बस क्वेश्चन
को रीड करते वक्त आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है। लाइक द अमाउंट में अगर फ्लक्चुएशंस हैं या डेट्स में फ्लक्चुएशंस हैं, डेट्स या अमाउंट्स अनइक्वल हैं, तो हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द फर्स्ट केस when the amount and the date of drawings are unequal, and we have calculated and we have learned that how interest on drawings will be calculated by using simple method and by using product method. Now moving on to case number 2, and the case 2 was when the amount and the dates of drawings are equal. एक ही जैसी अमाउंट, एक ही जैसी डेट्स को विड्रॉ हो रही हैं, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज़ टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड और फैक्टर अपॉन 12। तो हम इसमें एवरेज पीरियड मेथड और फैक्टर यूज़ करेंगे। अच्छा, देयर माइट बी सर्टेन केसेस। अब मैं आपको केसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहला केस होता है मंथली। मंथली का मतलब दैट द पार्टनर इज़ विदड्रॉइंग एवरी मंथ, वो हर मंथ ड्राइंग कर रहा है। मतलब साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, एंड ही इज़ विदड्रॉइंग द अमाउंट फॉर ऑल द 12 मंथ्स। अब यहाँ पर फर्दर 3 केसेस बनेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब वो हर महीने की फर्स्ट डेट को ही ड्राइंग कर रहा, 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ फरवरी, 1st ऑफ मार्च, 1st ऑफ अप्रैल, 1st ऑफ मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। या ही इज़ विदड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ का मतलब ही इज़ विदड्रॉइंग ऑन 31st ऑफ जनवरी, ही इज़ विदड्रॉइंग एट द 28th of February, at 31st of March, at 30th of April, at 31st of May, or he is withdrawing at the mid of the month. Any date of between the month will be considered as mid of the month. तो यहाँ के जो फैक्टर्स होंगे वो इस तरह से होंगे। अगर मंथली का केस है, at the beginning of the month the factor is 6.5, at the mid of the month the factor is 6, and at the end of the month the factor is 5.5. ये तो बना फर्स्ट केस, दैट इज़ मंथली। नेक्स्ट इज़ क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स वो क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है। क्वार्टरली मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर में देयर आर 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर हो गया, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4th क्वार्टर हो गया। 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। वो हर क्वार्टर में एक बार ड्राइंग करता है। सेम यहाँ पे भी 3 सब केसेस बनेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, एट द मिड ऑफ द क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। फैक्टर्स विल बी 7.5, 6 एंड 4.5। नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ 6 मंथली। 6 मंथली का मतलब होता है वो साल में सिर्फ 6 महीने ही ड्राइंग्स करता है। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसने साल के शुरुआत के 6 महीने ड्राइंग्स की, उसके बाद उसने कोई ड्राइंग्स नहीं की, या कोई भी लगातार उसने 6 मंथ्स तक ही ड्राइंग्स की, बाकी के बचे हुए 6 मंथ्स उसने कोई भी ड्राइंग नहीं की। तो 6 मंथली में भी फिर से वही 3 केसेस, एट द बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड एट द मिड ऑफ 6 मंथ, एंड द फैक्टर्स विल बी 3.5, 3 एंड 2.5। एंड जैसे कि आप 6 मंथली है, ठीक वैसे ही एक 9 मंथली केस होगा, दैट ही हैज़ मेड ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। ही हैज़ विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बिजनेस रेगुलरली फॉर 9 मंथ्स। उसके बाद उसने बाकी बचे हुए 3 महीने कोई भी ड्राइंग नहीं की। तो यहाँ पर 9 मंथली के फैक्टर्स लगेंगे। बिगनिंग का होगा 5, मिड का होगा 4.5 एंड एंड का होगा 4। अब स्टूडेंट से बात आती है कि ये जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट 6.5, 6, 5.5, 7.6 और 4.5, या जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी एवरेज पीरियड के फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप इनको लर्न कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बट इफ़ यू are not able to learn, then how these factors or how these average period factors are calculated. The formula for calculating this average period is time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि ये फैक्टर्स आ कैसे रहे हैं, ये एवरेज पीरियड आ कैसे रहा है। सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जहाँ पर मैंने ऑल द 12 मंथ्स लिख रखे हैं लाइन से, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ईयर शुरू होता है जनवरी 1 से एंड इट विल एंड ऑन 31st ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है विच विल स्टार्ट ऑन जनवरी 1 एंड इट विल एंड ऑन 31st ऑफ दिसंबर। अब मंथली की बात करते हैं। मंथली का मतलब हो गया ही इज़ विड्रॉइंग एवरी मंथ। उसने जनवरी में भी ड्राइंग्स की, फेब में भी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसने हर महीने ड्राइंग्स की हैं। नाउ अगर उसने बिगिनिंग में ड्राइंग की है तो इट मीन्स हर महीने की वो फर्स्ट को ही ड्राइंग कर रहा है, तो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी ईयर की? ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 को उसने पहली ड्राइंग की। क्लियर? जनवरी 1। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसने फर्स्ट ड्राइंग जनवरी 1 को की। जनवरी 1 के बाद उस पूरे ईयर में कितने मंथ्स बचे? उस पूरे ईयर में मंथ्स बचे पूरे 12। जनवरी 1 को की, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 मंथ्स बचते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की होगी? दिसंबर में। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 1st ऑफ दिसंबर को। 1st ऑफ दिसंबर के बाद से टोटल कितने मंथ्स बच रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में? पूरा 1 मंथ बच रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 1। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। ये आया आपका एवरेज पीरियड या फैक्टर। उसी तरीके से एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख लीजिए। एट द एंड ऑफ द मंथ वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी अगर एट द एंड ऑफ द मंथ है? तो 31st ऑफ जनवरी को। 31st ऑफ जनवरी के बाद से उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल मंथ्स कितने बचते हैं? 11। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 31st ऑफ दिसंबर को। 31st ऑफ दिसंबर के बाद कितने मंथ्स बचते हैं? 0। ईयर का लास्ट डे है वो। तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5। एट द मिड ऑफ द मंथ, एट द मिड ऑफ द मंथ चलो हम मान लेते हैं कि वो हर महीने के 15 डेट को विड्रॉ कर रहा है। तो उसने पहली ड्राइंग कब की? जनवरी 15 को। जनवरी 15 के बाद से टोटल कितने मंथ्स बचते हैं? 11.5 मंथ। भाई आधा जनवरी बचा और उसके बाद 11 मंथ्स और बचे, तो 11.5। लास्ट ड्राइंग उसने कब की? लास्ट ड्राइंग उसने की होगी दिसंबर 15 को। दिसंबर 15 के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं? हाफ मंथ, आधा महीना बच रहा है, तो 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 6। इस तरीके से फैक्टर्स आते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। मंथली के ही जैसे क्वार्टरली आप देखिए। क्वार्टरली का मतलब वो साल में सिर्फ 4 बार ड्राइंग कर रहा होगा। क्वार्टर 4 होते हैं। अब देखिए मैंने जो चार्ट बनाया है मंथ्स का, फर्स्ट क्वार्टर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड क्वार्टर विल बी अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फोर्थ क्वार्टर विल बी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 4 क्वार्टर हो गए। अब एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर उसने पहली ड्राइंग क्वार्टर के बिगिनिंग में की, तो ऑब्वियस सी बात है जनवरी 1 को की। जनवरी 1 के बाद उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल कितने मंथ्स बच गए? मंथ्स बच गए 12। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला। लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग। अब लास्ट क्वार्टर बिगिन कहाँ से हो रहा? अक्टूबर से, यानी लास्ट ड्राइंग हुई होगी अक्टूबर 1 को। और अक्टूबर 1 के बाद टोटल कितने मंथ्स बच गए? 3। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द क्वार्टर देख लीजिए। उसने पहली ड्राइंग कब की होगी? क्वार्टर के एंड में। पहले क्वार्टर का एंड कहाँ है? मार्च में वो क्वार्टर ख़त्म हो रहा, तो उसने ड्राइंग की होगी 31st ऑफ मार्च को। क्लियर? 31st ऑफ मार्च के बाद टोटल कितने मंथ्स बचते हैं? 9। लास्ट ड्राइंग की कब की होगी? लास्ट क्वार्टर के लास्ट डे पर। तो लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लास्ट क्वार्टर का लास्ट डे कौन सा होगा? 31st ऑफ दिसंबर। 31st ऑफ दिसंबर को ड्राइंग की तो कितने मंथ्स बचते हैं? 0। तो 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। ये इस तरीके से क्वार्टरली के फैक्टर्स हैं। और अब बात करते हैं 6 मंथली। अब 6 मंथली के लिए आप चार्ट को देखिए। हम मान लेते हैं उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून
सिर्फ ये 6 महीने तक ही ड्राइंग्स किया, उसके बाद उसने कोई ड्राइंग्स नहीं किया। शुरुआत के 6 मंथ्स उसने लगातार ड्राइंग्स किया। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ उसने कब किया होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ उसने किया होगा, ऑब्वियस सी बात है 6 महीने तक कर रहा, तो पहला महीना जनवरी है तो उसने जनवरी 1 को किया। तो जनवरी 1 के बाद उस 6 महीने में टोटल कितने बचते हैं दिन? उसमें बचते हैं पूरे 6 मंथ्स, क्योंकि हम 6 मंथ्स का ही अब तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगले 6 महीने तो उसने किया ही नहीं ना ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? जून में, जून 1 के बाद वहाँ पर कितने मंथ्स बचे? 1। तो 6 + 1 = 7 एंड 7 डिवाइडेड बाई 2 = 3.5। और इसी तरीके से 6 मंथली के भी फैक्टर्स आ गए। 9 मंथली में आप 9 मंथ्स ले लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसी तरीके से 9 मंथली के भी फैक्टर्स आ गए। सो दिस इज़ द फॉर्मूला और दिस इज़ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टर, कि ये 6.56 या जो 7.5, 4.5, 3.5 जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो आ कैसे रहा? वो ऐसे आ रहा। The formula is time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. Now we will solve a question on this. Calculate interest on drawing at the rate of 10% per annum in the following cases. सबसे पहले केस 1 देखिए, हम लोग एक एक केस देखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन। Withdrew ₹1,000 at the beginning, ₹1,000 at the mid and ₹1,000 at the end of every month. Clear? 1,000 at the beginning of every month, 1,000 at the mid of every month and 1,000 at the end of every month। यानी वो हर महीने 1,000 निकाल रहा है। यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस हैं। पहले उसने 1,000 निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर 1,000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, फिर 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पहली बात मंथली ड्राइंग है और पूरे ये एक मंथ की ड्राइंग है 1,000, तो मंथली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12। तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12,000। टोटल ड्राइंग्स 12,000 आ गई, यानी उसने पूरे साल में कितनी अमाउंट विड्रॉ किया? 12,000। अब 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 बिगिनिंग का केस में, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 मिड के केस में, एंड 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 एंड के केस में। अगर मंथली ड्राइंग है सो द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर पर मंथ दे रखा है तो। उसी तरीके से केस नंबर 2, if he had withdrawn ₹2,000 at the beginning, 2,000 at the mid and 2,000 at the end of every quarter। क्वार्टर के केस में द अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। जैसे मंथली के केस में उसने साल के 12 महीने ड्राइंग्स की, क्वार्टरली के केस में उसने साल में सिर्फ 4 बार ड्राइंग्स की होगी। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी पूरे साल में टोटल कितनी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हुई? 2,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 8,000। तो 8,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12 बिगिनिंग के केस में, मिड के केस में हो जाएगा 8,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 एंड एंड के केस में हो जाएगा 8,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट देखिए केस, विड्रू ₹3,000 एट द बिगिनिंग, 3,000 एट द मिड एंड 3,000 एट द एंड फॉर 6 मंथ। सिर्फ 6 महीना ही ड्राइंग की है, हर महीने 3,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है 6 महीने तक, यानी 3,000 अगर एक महीने में विड्रॉ की तो टोटल 6 मंथ्स तक कितनी विड्रॉ की? 3,000 इंटू 6 18,000, 18,000 इंटू 10/100 इंटू 3.5/12 बिगिनिंग के केस में, 18,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 मिड के केस में, एंड 18,000 इंटू 10/100 इंटू 2.5/12 एंड के केस में। उसी तरीके से अगला केस 9 मंथली का है। ही हैड विड्रॉन ₹4,000 फॉर 9 मंथ्स। 9 महीने तक उसने 4-4 हज़ार रुपये हर महीने निकाले, यानी कि ड्राइंग्स कितने की हैं? 4,000 की। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स, 9 इंटू 4, 9 4 36, टोटल 9 मंथ्स में उसने कितनी ड्राइंग्स की? 36,000। तो 36,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12 in the case of beginning, 36,000 into 10/100 into 4.5/12 in the case of mid, and 36,000 into 10/100 into 4/12 in the case of end. So this was all about for interest on drawing. I'll repeat myself for you all once again कि interest on drawings को calculate करने के total cases होते हैं 2, when the amounts and the dates are unequal, when the amount and dates are equal. Unequal के केस में हम सिंपल या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। द फार्मूला फॉर सिंपल मेथड इज
अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12. एंड इफ द amount and the dates of drawings are equal, we will use average period method or the factor method, and the formula will be total drawings into rate upon 100 into factor upon 12. सिंपल मेथड के केस में मंथ्स कैलकुलेट करिए और हर इंडिविजुअल अमाउंट का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल कर आप उसको एंड में ऐड कर देंगे और आपको पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल जाएंगी. प्रोडक्ट मेथड के केस में अमाउंट एंड डेट आपको दिया है, कैलकुलेट करिए मंथ्स, अमाउंट एंड मंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स निकालिए, प्रोडक्ट्स का टोटल करिए, फॉर्मूलेज में वैल्यू रखिए, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, यू विल गेट द आंसर. केस नंबर 2 इज द फैक्टर मेथड व्हेन द dates and the amount of drawings are equal. In that case there are 4 cases. The drawings are monthly, or the drawings are quarterly, or the drawings are made for a period of only 6 months, or the drawings are made only for the period of 9 months. मंथली के केस में बिगिनिंग, मिड और एंड के फैक्टर्स हो जाएंगे 6.5, 6 एंड 5.5. बिगिनिंग, मिड और एंड क्वार्टरली के केस में फैक्टर्स हो जाएंगे 7.5, 6 और 4.5. 6 मंथली के केस में 3.5, 3 एंड 2.5, एंड 9 मंथली के केस में 5, 4.5 एंड 4. एंड ये फैक्टर्स या ये एवरेज पीरियड के जो वैल्यूज़ हैं ये कैसे आ रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला है दैट द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये फैक्टर्स किस तरह से हम डिराइव करते हैं, ये फैक्टर्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. एंड एट लास्ट हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं. सिर्फ इतना याद रखिएगा, अगर मंथली ड्राइंग दी है सो द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 12. क्वार्टरली ड्राइंग्स दी हैं सो द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4. 6 मंथली ड्राइंग्स हैं देन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 6. एंड 9 मंथली ड्राइंग्स हैं सो द अमाउंट ऑफ ड्राइंग विल बी मल्टीप्लाइड बाई 9. सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 या इंटू फैक्टर अपॉन 12. So students, this was all about for this topic. This was all about for interest on drawing. These are the basic and these are the most important and commonly used methods and the cases which are used for calculation of interest on drawings. I hope you all have liked this video, you all have enjoyed this video. My only request to you all student is that go through the video very sincerely. The topic is very easy but it involves too much calculations in it. There are a lot of calculations but the calculations are not very lengthy, very small amount calculation are there, but you have to be careful. सबसे पहले you have to identify, पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना ज़रूरी है कि which case is this, whether it will be solved by simple or product method or whether it will be solved by factor method. and उसके बाद अगर factor method है तो आपको factors याद होने ज़रूरी हैं. इन केस अगर आपको factors नहीं भी याद हैं तो factor कैसे calculate करते हैं, that is time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2. अगर आपको ये याद है तो आप अपनी फिंगर्स पे भी फैक्टर्स को तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव learned that how you have to calculate interest on drawing. So student, this was all about for this part and for this segment. And now in the next video of partnership fundamental we will study and we will learn some other topic. Like in the previous video we have learned the basics, that how we will prepare PL appropriation account and partners capital account. In this particular video we have learned that how we will calculate interest on drawing by in different cases by using different methods. In the next video I'll come up with some fresh topics and or some interesting topics for you all. Till then students, keep on studying, keep on practicing, keep on solving numericals, and again if you have any query feel free to ask me anytime personally. Thank you to everyone and best of luck students.